Hi friends, welcome to everyone. आमे हमरो प्रीवियस वीडियो रे 2021 आसीथिबा OEVS TGT मैथ रो क्वेश्चन नंबर 40 रु 50 तक सॉल्व करिथिले। एही वीडियो रे क्वेश्चन नंबर 51 नु 60 तक सॉल्व करिबा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 51. Question number 51 कौन कहिचे? We have to find out the value of 12 cos cube pi by 6 minus cos pi by 6. As we know, the value of cos pi by 6, as we know, the value of cos pi by 6, that is cos 30, which is nothing, which is our root 3 upon 2. आम जानचु cos 30 रो वैल्यू केते root 3 by 2. So the value of 12 cos cube pi by 6 minus 9 cos pi by 6 एटा हमको फाइंड आउट करियर अछि। ताले लिख परिय केते 12 into cos cube pi by 6, which is nothing, cos pi by 6 whole to the power 3 minus 9 cos pi by 6. आमे cos cube pi by 6 को लिख परिबा cos pi by 6 रो whole to the power q. सिमिलरली केते हिजबो 12 into cos pi by 6 रो वैल्यू केते जानले √3 upon 2. So √3 upon 2 whole to the power q minus 9 into √3 by 2. Clear? Again 12 into √3 power q. √3 power q केते हिजबो 3 √3 divided by 2 to the power q, which equals to 8 minus 9 √3 divided by 2, which equals to 4 केतले केते हिजबो एटा 2, 4 केतले केते हिजबो 3. So 3 into 3, 3 3 is 9, 9 √3 upon 2 minus 9 √3 upon 2, which equals to 0. Hence option 4 is the correct answer. Clear? Basically हम एठी कोन करछे cos pi by 6 means cos 30 रो वैल्यू पुट करछे √3 by 2. Again cos cube by pi 6 जे cos pi by 6 रो होल क्यूब आकार में लिख परिबा. Clear? So now come to the next question, that is question number 52. Question number 52 कोन कहिचे for the linear equation x plus 2y equals to 10, the x intercept is, we have to find out the value of x intercept. X intercept हमको find out करिबार अछि. इक्वेशन कोन दैछि x plus 2y equals to 10. आमे जानिछु equation of line when the intercept is given, तो स्लोप बा ताको आमे intercept form of line बोली कहि परिबा कोन थला x upon a plus y upon b which equals to 1. एटा ला कोन equation of straight line in intercept form where a is nothing, which is our x intercept, जोटा कि x रो तळे जोटा अछि ताको हम कहबा x intercept. Similarly b को कोन कहबा y intercept. Clear? तो हमको बर्तन एटा देछि कोन लीनियर इक्वेशन देछि x plus 2y equals to 10. बर्तन हम ए इक्वेशन टाको इक्वेशन 1 टाको ए फॉर्म रे आनिबा. केमति आनिबा ना सर राइट हैंड साइड रे 1 अछि, सो एठी हमरो केते अछि 10 अछि. सो नाउ डिवाइडिंग 10 on both sides, x by 10 plus 2y upon 10 which equals to 1. yes or no? जोटा को फर्दर सॉल्व करले केते पाइबा x upon 10 plus y upon 5 equals to 1. बर्तमान एटा आसी गला कोन हमर रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन. ताले कोड आसला x रो तळे जाय जोटा थाइ सेटा थाइ x इंटरसेप्ट, सेल y रो तळे जोटा थाइ सेटा कोन होय y इंटरसेप्ट. हम क्वेश्चन कम पछे x इंटरसेप्ट, सो द x इंटरसेप्ट विल बी 10. क्लियर? काहे x रो डिनोमिनेटर के अछि 10, सो 10 विल बी द x इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन. क्लियर? सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. बेसिकली क्वेश्चन हम कोन करछे एटा होची इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जोटी को फॉर्म रे थाए x by a plus y upon b equals to 1, where a is the x intercept and b is the y intercept. Now come to the third question, that is question number 53. We have to find out the value of if cos a minus cos b whole square plus sin a minus sin b whole square equals to lambda into sin square a minus b upon 2, then find out the value of lambda. We have to find out the value of lambda. अच्छा लेफ्ट हैंड साइड के दीजिए cos a minus sin a रो होल स्क्वायर प्लस sin a minus sin b रो होल स्क्वायर, जोड़ा को हमें सॉल्व करले केते पाइबा a minus b रो होल स्क्वायर, that is a square plus this is not a, this is b, cos a minus cos b, this is not sin, cos a minus cos b रो स्क्वायर. So a minus b रो होल स्क्वायर, that is a square plus b square, that is cos square b minus 2 cos a into cos b. Again हम a minus b रो whole square put करिया जेतु sin a minus sin b अछि, so it will be sin square a plus sin square b minus 2 sin a into sin b. Clear?
बर्तमान cos square a sin square a, cos square a plus sin square a, it will be 1. Similarly, cos square b plus sin square b, again it will be 1. So 1 plus 1, remaining term कितना रहिला minus 2 cos a into cos b minus 2 sin a into sin b. Clear? Again 1 plus 1, it will be 2 minus 2 common लेटा कितना रहिबो cos a into cos b plus sin a into sin b. कहीं ना मैं -2 कॉमन नहीं जोटा को फर्दर सॉल्व कर केते पाइबा 2 - 2 एटा कार फार्मूला cos a into cos b plus sin a into sin b. It will be the formula of cos a minus b. Clear? Again, if you take 2 common, it will be 1 minus cos a minus b. Clear? As we know the property that, as we know the formula that 1 plus cos 2a, sorry, 1 minus cos 2a, which is nothing 2 sin square a. कहीं ना 1 plus cos 2 फॉर्मूला होची 2 cos square a, 1 minus cos 2 फॉर्मूला है जो 2 sin square a. एठी 2a थिला बेले एठी केते आउची a. सिमिलरली जदि मु लिखबी 1 minus cos a, it will be 2 sin square a by 2. कहीं एठी जहा थिबो एटा तार कोन आसबो हाफ आसीबो a by 2. Clear? So similarly this will be 2 whole into 1 minus cos 2a, it will be into 2 sin square a जहा थिबो तार अधा a minus b by 2. क्लियर? बर्तमान क्वेश्चन ने गिवन कोन थिला लेफ्ट हैंड साइड टाकू सॉल्व करले हमें केते पाइबा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा इनटू sin स्क्वायर a minus b by 2. मगर इथे हमें केते पाउचे 4 sin स्क्वायर a minus b by 2 जोटे के आसीबा कथा केते लैम्डा sin स्क्वायर a minus b by 2. सेम फॉर्मेट रे से होची बस लैम्डा जगह की होची 4. हेंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा हमको तो लैम्डा रे वैल्यू फाइंड आउट करे थे ना. Hence the value of lambda will be 4. That is option 3 is the right answer. Clear? Basically इठी हमें दुईटा फॉर्मूला यूज करछे a minus b whole square एवं 1 minus cos 2a. Clear? So now come to the question number 54. Question number 54 कोन कहिचे x square minus 3x plus mod of m equals to 0 has real roots. How many integers value can m take? तले इक्वेशन कोन देछि x square minus 3x plus mod of m equals to 0. आउ कोन देछि has real roots. आमे जानिछु गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एटा गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल रूट रहइबो केतबेले द d टा स्ट्रेटली ग्रेटर देन 0. दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स व्हेन d greater than 0. व्हाट इज d here? d is nothing which is our b square minus 4c, that is b square minus 4ac यदि स्ट्रेटली ग्रेटर देन 0 होंती तला हम कहि परिबा दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स. एठी मध्ये गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देछि आउ कोन देछि हैज रियल रूट्स आर रियल रूट्स अछि दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4 सेठी केते जिवो ग्रेटर देन 0. सेठी a केते a होछि 1, b रे वैल्यू केते -3, c रे वैल्यू केते mod of n. सो b स्क्वायर माइनस 4 इज इट विल बी 9 minus 4 into a into c. एटा केते आसीबा ग्रेटर देन 0 आसीबो. implies 9 minus 4 into mod of m greater than 0, that is 9 greater than 4 into mod of m जोटा के मैं लिख पारे कोन 4 into mod ro m less than equals to 9 implies mod of m less than equals to 9 by 4 जोटा को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करले केते आछिबो 2.25. अगेन हमें मॉडुलस रो प्रॉपर्टी यूज करबा. हम जानछु m रो mod केते देछि 2.25. दैट मींस द वैल्यू ऑफ m lies between -2.25 and +2.25. तले हमको काहे वैल्यू फाइंड आउट करियर अछि m रो हाउ मेनी इंटीजर्स वैल्यू कैन m टेक. m रो केतेटा इंटीजर्स वैल्यू हे परिबो जहा फल रे ए एक्सप्रेशन टा कोन आसीबो ग्रेटर देन 0. बर्तन ए एक्सप्रेशन टा ग्रेटर देन 0 केतले आसीबो जेतले m रो वैल्यू काहार का भितर लाइज करूथिबो -2.25 रु +2.25 भितर लाइज करथिबो. बर्तन हम देखिबा -2.25 एंड +2.25 भितर केतेटा इंटीजर्स लाइज करछि. तले -2.25 +2.25 हम नंबर लाइन ले गले एटा केते आसीबो 0, एटा आसीबो 1, एटा आसीबो 2. So it is this one is -1, this one is -2. तले -2.25 +2.25 तर हमें कितने इंटीजर पाउचे पांचटा इंटीजर के -2 -1 0 एंड 1 2 ए पांचटा इंटीजर ही पाउचे -2 -1 0 1 एंड 2. क्लियर? हेंस हाउ मेनी इंटीजर्स वैल्यू ऑफ वैल्यू कैन m टेक दैट इज 5 इंटीजर्स. तबले m रो कितने इंटीजर वैल्यू आसी परिबो ना पांचटा इंटीजर्स वैल्यू आसी परिबो जहा पई एक्सप्रेशन टा किते आसीबो ग्रेटर देन 0. क्लियर? सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55 कोन कहिचे
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x plus y इन द सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन तले हमको कहार वैल्यू फाइंड आउट करियर अछि x plus y रो वैल्यू फाइंड आउट करियर अछि इक्वेशन कोन दैछि 3 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 equals to 2 again 5 divided by x minus 1 plus 3 divided by y minus 2 equals to 3 बर्तमान ये दिटा इक्वेशन को हम सॉल्व करिबा x और y रो वैल्यू कैलकुलेट करनबा देन x एंड y रो वैल्यू पाइसला परे x plus y फाइंड आउट करनबा क्लियर बर्तमान ये दुटा इक्वेशन को केमते सॉल्व करिबा दिस वन इज माइनस नॉट प्लस 5 upon x minus 1 minus 3 into y minus 2 it will be minus बर्तमान एटी होची 3 upon y minus 2 एटी होची 1 upon y minus 2 ताले लेट बी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बर्तमान हम इक्वेशन 1 रे जदी 3 मल्टीप्लाई करिबनबा इक्वेशन 1 रे हम जदी 3 मल्टीप्लाई करनबा एवं इक्वेशन 2 से ऐड करिबा y टर्म विल बी कैंसिल आउट तो कोन करिबा इक्वेशन 1 into 3 मल्टीप्लाई कले केते आसीबो 9 upon x minus 1 एट लिखि दोची इक्वेशन 1 into 3 क्लियर तेणु केते आसीबो 9 upon x minus 1 plus 3 upon y minus 2 equals to 2 again के आसीबो 5 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 equals to 3 it will be 6 कहिना 3 multiply करछ it will be 6 if we adding these two हमें कोन पाइबा this one will be cancel out तो 9 upon x minus 1 plus 5 upon x minus 1 it will be 14 upon x minus 1 which equals to 9 implies क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले हमें केते पाइबा 9x minus 9 which equals to 14 डायरेक्ट सॉल्व करिया ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करबा केते आसीबो 9 into x minus 1 equals to 14 implies 9x minus 9 which equals to 14 implies 9x equals to 23 14 plus 9 it will be 23 implies x equals to 23 upon 9 ताले x रो वैल्यू हमें केते पाइ गले 23 upon 9 y रो वैल्यू हमें केमते पाइबा ना सर x रो वैल्यू को नहीं आइदर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 रे पुट करले हमें कोन पाइ जबा y रो वैल्यू पाइ जबा सपोज x रो वैल्यू को नहीं हमें इक्वेशन 2 रे पुट करबा केते पाइबा 5 upon x जगह रे तो पुट करबा 23 upon 9 minus 1 minus 3 upon y minus 2 which equals to 3 implies 5 upon आर एलसीएम ले केते हिजो 9 एटा हिजो 23 minus 9 minus 3 upon y minus 2 equals to 3 implies 5 into 23 minus 9 it will be 14 by 9 ऊपर को असले केते जो 9 by 14 minus 3 upon y minus 2 which equals to 3 implies 5 न केते 45 45 upon 14 sorry 49 upon 45 upon 14 it will be minus 3 which equals to 3 upon y minus 2 clear 3 टाइप टू नै आसी राइट हैंड साइड को 3 upon y minus 2 नै आइछ clear implies एतर केते पाइबा एलसीएम केते जो 14 so 45 minus एटा केते आसो 42 which equals to 3 upon y minus 2 after cross multiplication हमें कोन पाइबा 45 minus 42 it will be 3 upon 14 next step cross multiply करिया एबे करिया नहीं कोन पाइबा 3 upon 42 equals to 3 upon y minus 2 बर्तन cross multiplication कले केते पाइबा 3 whole into y minus 2 equals to 42 implies 3y minus 6 equals to 42 implies 3y equals to 42 plus 6 it will be 48 implies y equals to 48 divided by 3 that is 16 so हमें x रो वैल्यू केते पाइथिले 23 upon 9 y रो वैल्यू केते पाइले 16 हम काहर वैल्यू दरकार x plus y रो वैल्यू hence the value of x plus y will be 23 upon 9 plus 16 which equals to LCM ने केते हो 9 23 plus 16 144 जो दुइटा को हम ऐड करे केते पाइबा 167 upon 9 hence option 2 is the required answer clear basically कोन कले इक्वेशन 1 ने हम 3 मल्टीप्लाई करछे देन y टर्म कैंसिल हो जाइछे सॉल्व करी x वैल्यू पाइले x रो वैल्यू को नहीं हमें आइदर इक्वेशन 1 या 2 रे पुट करले हमें y रो वैल्यू पाइ जिबा देन x plus y को ऐड करनबा clear so now come to the question number 56 question number 56 कोन होइछे let A be a 3 by 3 matrix satisfying A of 0 1 0 equals to 2 3 7 similarly A of 1 minus 1 0 equals to minus 2 1 minus 2 and A of 1 1 1 equals to 5 9 8 then the sum of diagonal entries of A अच्छा बटन एठी A कोन देछि नोटे 3 by 3 matrix let मुदा कंसीडर करने उछि केते A B C D E F G H I मुटे एक गोटे 3 by 3 matrix नै गली क्लियर मुते कोन फाइंड आउट करै छी देन द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए तले डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए एठी के आउछि डायगोनल एंट्री के आसीबो
गोटे आसो डायगोनल एंट्री की अछि ना ए अछि ई अछि आई अछि दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस ई प्लस आई क्लियर हमको यार वैल्यू फाइंड आउट करियर अछि केमते फाइंड आउट करबा गिवन कोन देछि a of 0 1 0 equals to 237 तन a मैट्रिक्स रे 0 1 0 मल्टीप्लाई हेले केते दोछ आंसर 237 दैट इज a मैट्रिक्स हमर केते थिला a मैट्रिक्स को आउते लिखि नबा a मैट्रिक्स थिला a b c d e f g h i आ सतो कहा को मल्टीप्लाई करछि मल्टीप्लाई हिची 0 1 0 0 1 0 रिजल्ट्स केते आछि रिजल्ट आछि 237 जो देखो मल्टीप्लाई करबा तले आंसर केते पाइबा a into 0 0 b into 1 will be plus c into 0 will be 0 that is b similarly second रे केते पाइबा e थर्ड रे केते पाइबा h b e h equals to केते दिछि 237 तो एथरा में कोन पाइले b equals to 2 e equals to 3 and h equals to 7 क्लियर तो फास्ट में कहार वैल्यू पाई गले e रो वैल्यू पाई गले बर्तमान हमर कहार वैल्यू दरकार a रो आउ i रो वैल्यू दरकार सिमिलरली सेकंड को सॉल्व करले गोटे वैल्यू पाइबा थर्ड को सॉल्व करले गोटे वैल्यू पाइबा सिमिलरली सेकंड रे कोन दैछि अगेन a b c d e f g h i 3/3 मैट्रिक्स ए सुद्धा कहा को मल्टीप्लाई करबा 1 -1 0 रिजल्ट्स केते आछी रिजल्ट आछी -2 1 -2 क्लियर ए सन्नो बर्तमान हम जदि मल्टीप्लाई करबा रिजल्ट्स केते पाइबा a b c से तो 1 -1 it will be a minus b plus 0 that is a minus b similarly केते पाइबा d minus c एटा केते पाइबा g minus h का को a मैट्रिक्स को 1 -1 0 से तो मल्टीप्लाई करले जोटी रिजल्ट्स के दिछि -2 1 -2 क्लियर तो एथरा में कोन पाइले a minus b equals to -2 किंतु हमको a रो वैल्यू जणा अछि सॉरी b रो वैल्यू जणा अछि b equals to केते 2 so implies a equals to 0 similarly एगन कोन पाइबा d minus e equals to 1 किंतु हमको e रो वैल्यू जणा अछि केते 3 so d equals to 4 the value of d will be 4 similarly आउ कोन पाइबा लास्ट इक्वेशन g minus h equals to -2 किंतु h हमरो वैल्यू केते जणा अछि 7 so g will be -2 plus 7 that is 5 क्लियर तो एथरा में काहर वैल्यू पाई गले a रो वैल्यू पाई गले एठी हमें e रो वैल्यू पाइथिले एठी हमें a रो वैल्यू पाई गले तले आउ काहर वैल्यू दरकार i रो वैल्यू दरकार तर i रो वैल्यू हमें कोड पाइबा ना थर्ड रो बटन थर्ड को अगेन सॉल्व करबा केतेला a b c d e f g h i आ से तो काको मल्टीप्लाई करबा 1 1 1 मल्टीप्लाई हेले रिजल्ट्स केते आछे 5 9 18 क्लियर तो आपको हमें सॉल्व करले केते पाइबा सॉल्व करले पाई जिबा a plus b plus c d plus e plus f g plus h plus i equals to 5 9 18 क्लियर कने a b c d e f g h i से तो 1 को मल्टीप्लाई करले केते एति पाइबा तले एथरा में कोन पाइले ना a plus b plus c equals to 5 किंतु हमको b और c रो वैल्यू जणा अछि b रो वैल्यू केते जणा अछि b रो वैल्यू जणा अछि 2 एवं a रो वैल्यू केते जणा अछि 0 so the value of c will be 5 minus 2 that is 3 क्लियर तो c रो वैल्यू हमें केते पाई गले 3 सिमिलरली अगेन कोन अछि d plus e plus f केते अछि 9 किंतु हमको e रो वैल्यू केते जणा अछि 3 अगेन d रो वैल्यू केते जणा अछि 4 so d रो वैल्यू हला 4 e रो वैल्यू हला 3 4 plus 3 equals to 7 that is 7 plus f equals to 9 so f will be 9 minus 7 that is 2 क्लियर तो f रो वैल्यू हमें केते कैलकुलेट करने ले 2 सिमिलरली लास्ट इक्वेशन के देछि g plus h plus i equals to 18 ताले g रो वैल्यू हमें केते जणा अछि 5 h रो वैल्यू केते जणा अछि 7 so g plus h that is 5 plus 7 it will be 12 12 plus i equals to 18 अतः i equals to 18 minus 12 18 minus 12 which equals to 6 क्लियर हमको कहारो वैल्यू दरकार थिला a plus e plus i रो वैल्यू दरकार थिला ए सनो हमको a plus e plus i रो वैल्यू दरकार थिला बर्तन a रो वैल्यू हम केते पाइचे a रो वैल्यू पाइले 0 i रो वैल्यू केते पाइले 6 अगेन e रो वैल्यू केते पाइचे 3 hence the value of a plus e plus i equals to a जगह रे पुट करबा 0 plus e जगह केते पुट करबा 3 plus i जगह केते पुट करबा 6 that is 9 9 is our required answer that is option 4 is the right answer clear a रो वैल्यू हम केते पाइचे 0 e रो वैल्यू केते पाइचे 3 h रो वैल्यू i रो वैल्यू केते पाइले 6 so 6 plus 3 plus 0 equals to 9 hence option 4 is the right answer clear
Now come to the question number 57. Question number 57 कौन कहिछि? What is the value of 10 to the power m cube plus 3m square minus 5m minus 279 if 2m minus m is a solution of 15x plus 13y equals to 51. ताले हमको कहार वैल्यू फाइंड आउट करियर अछि 10m cube plus 3m square minus 5m minus 279 रो वैल्यू फाइंड आउट करियर अछि. अगेन गिवन कोन अछि 15x plus 13y equals to 51. गोटे इक्वेशन दैछि जहार सॉल्यूशन केते अछि 2m, -m. जेहेतु 2m minus m is the solution of this equation, so this solution must satisfy the equation. तमन x जगह में 2m पुट कर देबा, y जगह में -m पुट करले इक्वेशन को सैटिस्फाई करबो. एथरो में काहर वैल्यू पाइ जबा m रो वैल्यू पाइ जबा. से m रो वैल्यू कनी ए एक्सप्रेशन पुट कर देले हम पाइ जबा रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर? जेहेतु इट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, so it is satisfy it will be satisfy the given equation. ताले 15 into x जगह के पुट करबा 2m plus 13 into y जगह के पुट करबा -m which equals to 51. जेहेतु 2m and -m is the solution of this equation, so it must satisfy the given equation. तो हमें केते पाइबा 15 into 2 that is 30m minus 13m equals to 51 implies 30m minus 13m it will be 17m equals to 51 implies the value of m will be 3. Clear? Implies the value of m will be 3. जदि m रो वैल्यू 3 आसी गला तला हम कार वैल्यू दरकार आर वैल्यू दरकार केते आसीबो 10 into 3 to the power q that is 27 plus 3 into 3 रो स्क्वायर that is 9 minus 5 into 3 minus 279 जोड़ा सॉल्व करले केते पाइबा 727 into 100 that is 270 clear plus it will be 27 minus 15 minus 279 बर्तन 270 रे 27 को ऐड करले इट विल बी 297 माइनस एटा ऐड करले केते जो 492 that is 294 that is 297 minus 294 it will be 3. Hence option 1 is the right answer. बुझिला बेसिकली कोन कहछि 2m minus 1 2m minus m is the solution of the given equation, so equation को x जगह 2m y जगह -m पुट करले सैटिस्फाई करबो, सो सेतुरा में m रो वैल्यू पाइ जबा देन कैलकुलेट करनबा. Now come to the question number 58. Question number 58 कौन कहिछि if the difference between the roots of the equation x square plus 2kx plus 1 equals 0 is less than 2 root 3 then dash is the set of possible value of k. हमको कहार वैल्यू फाइंड आउट करियो अछि k रो वैल्यू फाइंड आउट करियो अछि. कोन दैछि ना if the difference between the two roots of the given equation ताले गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दैछि के x square plus 2kx plus 1 equals 0. जेहेतु गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर केतेटा सॉल्यूशन आसीबो दुईटा सॉल्यूशन से दुईटांक सॉल्यूशन भितर से दुईटांक सॉल्यूशन डिफरेंस टा कहा सॉल्यूशन आसीबो 2 रूट 3 थारु सानो आसीबो. तो एट फर्स्ट हम बाहर करनेबा ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो सॉल्यूशन की आसीबे आमे जानछु फार्मूला कोन -b प्लस माइनस b स्क्वायर minus 4 into a into c रो रूट ओवर डिवाइडेड 2a ए फार्मूला पुट करले हमें कोन दुईटा सॉल्यूशन पाइ जिबा. तो लेथर में केते पाइबा -2k प्लस माइनस एठी 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर minus 4 root over divided by 2 into a रो वैल्यू केते 1 दिछि 2 into 1 that is 2. अगेन दाउ सॉल्व करले केबा केते पाइबा -2k प्लस माइनस 4 कॉमन नै जिबा 4 कॉमन नै लेके रहि जिबा केते k स्क्वायर minus 1 अगेन 4 root over जे केते 2 सो डायरेक्ट लिखि दोछि 2 root over of k स्क्वायर minus 1 divided by 2. एथर में आंसर केते पाइबा -2 कॉमन गले केते रहइबो k प्लस माइनस k स्क्वायर minus 1 होल डिवाइडेड बाय सो इट विल बी plus 2 common गले minus k divided by 2, so 2 will be cancel out. ताल दुईटा का सॉल्यूशन की आसीबे minus k plus रे गोटे आसीबो k स्क्वायर minus 1 आ गोटे सॉल्यूशन की आसीबो minus k minus root over of k स्क्वायर minus 1. Clear? Yes or no? तो the two solution of the given quadratic equation is one is minus k plus k square minus 1 and another is minus k minus of k square minus 1. So ये दुटांक रूट्स आसीगला कहार गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो ए दुटांक भितर एसरेज कोन होइछि द डिफरेंस बिटवीन द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन तने ए दुटांक रूट्स रो डिफरेंस केते आसीबो लेस देन 2 रूट 3 तने माइनस k प्लस रूट ओवर k स्क्वायर माइनस 1 माइनस आउट रूट k माइनस रूट ओवर ऑफ k स्क्वायर माइनस 1 जे केते आसीबो लेस देन 2 रूट 3 इंप्लाइज जोटा हम सॉल्व करले केते माइनस k प्लस रूट ओवर ऑफ k स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस विल बी प्लस. Again this will be plus k square
minus 1 root over less than 2 root 3 बर्तमान minus k plus k will be cancel out implies एथर हमें कौन पाइबा 2 root over of k square minus 1 equals to 2 root 3 implies k square minus 1 equals to root 3 k square minus 1 root over equal be root 3 2 will be cancel out hence now squaring on both sides हमें कौन पाइबा k square minus 1 equals to 3 implies sorry this is not equal this is inequality less than it is also less than it is also less than clear so k square minus 1 less than 3 implies k square less than equals to 4 so k square टा less than equals to 4 हमु कहार वैल्यू फाइंड आउट करथिला k रो वैल्यू फाइंड आउट करथिला ताले k square टा less than equals to 4 hence the value of k will be minus 2 comma 2 clear जेतु strictly less than अछि तो k रो वैल्यू केते आसीबो minus 2 रो 2 भितर आसीबो clear now come to the question number 59 question number 59 कोन अछि two fair dice are rolled simultaneously what is the probability that sum on the faces obtained is 6 ताले कोन कहूची दुईटा डाइस अछि ताको केथे रोल करबा two fair dice rolled simultaneously दुईटा को डाइस को simultaneously रोल्स कले ताले तारो sample size केते आसीबो 6 रो स्क्वायर दैट इज केते 36 hence it is sample size केते पाई गले 36 काहे कि ना गोटे डाइस को लूडो डाइस को केथे रोल करबा साइमल्टेनियसली दुईटा लूडो डाइस को थ्रो करबा तनु sample size केते आसीबो 6 रो स्क्वायर जो 3 टाइम्स रोल करथन केते आसना 6 टू द पावर q बट आई थिंक two dice are rolled simultaneously तनु sample size केते आसला 36 बट event कोन पुछाची what is the probability that sum of the on the faces obtained is 6 ता माने सपोज फर्स्ट रे हम यदि लूडो डाइस को थ्रो करिया के एस पर 1 एस पर 3 एस 2 एस पर 3 एस पर 4 एस पर 5 एस पर 6 एस पर सिमिलरली सेकंड को थ्रो कले केदा 1 एस पर 2 एस पर 3 एस पर 4 एस पर 5 एस पर 6 एस पर से कहूची फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस टू फेयर डाइस को हम रोल करछे सो दुईटा डाइस को सम टा केते आस्तिबो सम टा केते आसो 6 आसो दैट मींस यदि फर्स्ट डाइस रे 1 आछि सेकंड डाइस रे 5 आसला तले केतेला 5 + 1 = 6 ये गोटे इवेंट हे परिबो सिमिलरली फर्स्ट डाइस रे 5 आछि सेकंड डाइस रे 1 ये मध्ये गोटे इवेंट हे परिबो दैट इज 1 5 5 1 ये गोटे इवेंट हे परिबो काहेना दुईटा सम केते आछि 6 आछि आ कोन पॉसिबिलिटीज अछि ना सर फर्स्ट रे 4 सेकंड रे 2 आसीगला 4 + 2 = 6 आसीबो सिमिलरली फर्स्ट रे 2 सेकंड रे 4 आसला ये आ गोटे पॉसिबिलिटी एंड लास्ट पॉसिबिलिटी इज दैट इज 3 and 3 क्लियर कहना से कोइ कोन सम ऑफ ऑन द फेसेस ऑब्टेन इज 6 दुईटा को ऐड करले केते आसुतबो 6 आसुतबो तो केतेटा पॉसिबिलिटीज 1 5 5 1 4 2 2 4 and 3 3 एई पांचटा को छाडी साइला परे अन्य कोन से पॉसिबिलिटीज नाही hence the event cardinality will be केते आसु 5 so it will be 5 as we know p of e equals to number of event by number of sample space बा event cardinality divided by sample space cardinality so event cardinality केते अछि 5 sample space cardinality केते 36 hence the answer will be 5/36 clear now come to the last question as your last question that is question number 60 kon koichi a solid cube of side 22 cm long is melted so as to make solid sphere of radius 10 mm how many such sphere can be made आमे जानछु एटा देछि कोथरे सेंटीमीटर रे एटा कोथरे देछि मिलीमीटर रे yes or no as we know 1 centimeter equals to 10 millimeter एटा आमे जानछु क्लियर बट ना सॉलिड क्यूब देछि जहार साइड केते लेट बी a नै होछि केते तार साइड केते होछि 22 सेंटीमीटर क्लियर तो ताको हम यदि मिलीमीटर कन्वर्ट करिया केते आसीबो 220 मिलीमीटर क्लियर तो हम कोन कहिछि जेतले आइस क्यूबटा सॉलिड क्यूबटा मेल्ट हबो सेथर हम कोन करिबा छोटो छोटो सॉलिड स्फीयर फॉर्मेशन करिबा हैविंग रेडियस केते 10 मिलीमीटर देन पछे हाउ मेनी सच स्फीयर कैन बी मेड केतेटा सेही भले स्फीयर हम ड्रा करि परिबा जहार की ड्रा नुहे हम तयारी करि परिबा जहार रेडियस केते आसीबो 10 मिलीमीटर बर्तन हम कोन करिबा बर्तन हम से सॉलिड क्यूब रो साइड देछि 22 मीटर से तार हम कोन फाइंड आउट करनबा वॉल्यूम फाइंड आउट करनबा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब फाइंड आउट करनबा देन कोन बाहर करिया कोन जिते कि ताथुर कोन बनेर अछि हमको सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस 10 मिलीमीटर तनो गोटे वॉल्यूम को सॉरी गोटे स्फीयर बनया पई रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर को नै करी रेडियस 10 मिलीमीटर नै किना गोटे स्फीयर बनया पई केते वॉल्यूम आछि बा केते वॉल्यूम दरकार दैट मींस वॉल्यूम ऑफ one sphere having radius केते 10 मिलीमीटर
जदि आम वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर रे सॉलिड क्यूब रे डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर हैविंग आर रेडियस टा 10 मीटर जदि डिवाइड करदा ताले कहीं एठी कोन आसीबो नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर आसीबो एस और नो नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर आसीबो कोन कहले बेसिकली ना सॉलिड क्यूब देछि ताको हमें मेल्ट करी कोन बनेबा सॉलिड स्फीयर बनेबा जहां रेडियस केते थिबो 10 मिलीमीटर ताले से पूछो केतेटा सच स्फीयर अरेंज करबो ताले हम कोन करबा तार आगो एट फर्स्ट वॉल्यूम बाहर कर देबा सॉलिड क्यूब रो साइड केते दिछि 22 हेंस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड क्यूब केते हिजबो वॉल्यूम विल बी a क्यूब दैट इज 220 रो क्यूब 220 रो क्यूब केते आसीबो 10648 केते जीरो 000 क्लियर एटा हेगला वॉल्यूम ऑफ क्यूब सॉलिड क्यूब बर्तमान ये जो मेल्ट हम से आम कौन फॉर्मेशन करबा सॉलिड स्फीयर फॉर्मेशन करबा ताले गोटे जहाँ रेडियस केते थिबो 10 हेंस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर केते आसीबो ना वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फॉर्मूला होची 4/3 इनटू पाई आर क्यू तो 4/3 इनटू पाई आर जगह पकेबा 22/7 इनटू आर क्यू आर वैल्यू केते जे 10 सो 10 रो क्यू क्लियर एटा होची वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर एटा होची वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ताले हम कोन जाने फाइंड आउट करियो छी हाउ मेनी सच स्फीयर कैन बी मेड ताले कोन करबा सॉलिड क्यूब रे वॉल्यूम सहित कहार वॉल्यूम को डिवाइड कर देबा वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर को डिवाइड कर देबा आमे पाई जिबा नंबर ऑफ स्फीयर क्लियर ताले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर केते दिथला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिथला 10648 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर केते आछि 4/3 into 22/7 into 10 रो क्यूब जोटा कि फर्दर सॉल्व करले केते आसीबो 10648 into ऊपर को केते हिजो 7/22 into 3/4 into 1/10 to the power cube that is 1000 so 000 एट 000 थिला 000 will be cancel out yes or no बर्तमान 4 या को हमें काटले केते हिजो 4 दुने 8 424 424 4 दुने 8 it will be 2662 clear एना को जमे 22 रे काटिबा केते आसीबो 22 रे काटले 21 जा 22 22 जा 44 it will be 121 clear so ठीक है बंचला 7 into 3 that is 21 that is 121 into 21 so 121 ने 21 को मल्टीप्लाई करके कितने हो 121 242 that is 1452 2541 that is 2541 number of sphere हमें कौन करिबा तैयारी करि परिबा that is 2541 that is option 4 is the required answer clear basically ठीक कौन दिथला गोटे सॉलिड क्यूब दिथला जहा को हमें नहीं करी मेल्ट करी किना 10 मिलीमीटर रो सॉलिड स्फीयर बनेबा तनो हमें तार एट फर्स्ट यूनिट को सेम करने छे देन हमें कोन करबा वॉल्यूम रो सॉलिड क्यूब रो वॉल्यूम फाइंड आउट करनबा देन गोटे स्फीयर पई वॉल्यूम केते दरकार पड़छि ताको डिवाइड कर देले हम पाइजबा कोन नंबर ऑफ स्फीयर क्लियर सो थैंक यू एवरीवन हमें नेक्स्ट क्लास रे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को डिस्कशन करबा।